1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 Corinthians 4 chapter, Psalms 113, 114, 115, 116। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय, भजन संहिता 113, 114, 115, 116 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। फर्स्ट कोरिन्थियंस 4 chapter, how to account of Christ's ministers to a self-sufficient vanity. Paul opposite his own afflicted state, etc. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required to stewards that a man be found faithful. But with me it is a very small thing that I should be judged of you or of man's judgment. Yea, I judge not mine own self, for I know nothing by myself. Yet am I not hereby justified? But he that judgeth me is the Lord. Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts. And then shall every man have praise of God. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why doest thou glory, as if thou hadst not received it? Now ye are full. Now ye are rich, ye have reigned as kings without us, and I would to God ye did reign, that we also might reign with you. For I think that God hath set forth us, the apostles, last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, but we are despised. Even unto this present hour we both hunger and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place. The labor working with our own hands, being reviled, we bless; being persecuted, we suffer it; being defamed, we entreat. We are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day. I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you.
For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Now some are puffed up as though I would not come to you, but I will come to you shortly, if the Lord will, and will know not the speech of them which are puffed up, but the power. For the kingdom of God is not in word, but in power. What will ye? Shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of meekness? पहले कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मसीह के प्रेरित। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में वह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे। वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करे। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरित को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें क्यों बुरा कहते हैं? हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं। हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं। हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। चेतावनी 14 वचन से आगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में यीशु मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह
हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनके सामर्थ्य को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? Psalms 113, 114, 115, 116 हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से। Exaltation to praise God. First verse say, praise ye the Lord. Praise, O ye servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens. Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high, who humbleth himself to behold the things that are in heaven and in the earth. He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill, that he may set him with princes, even with the princes of his people. He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. Psalms 114. Exhortation to fear God. First verse say, when Israel went out of Egypt, the house of Jacob, from a people of strange language, Judah was his sanctuary, and Israel his dominion. The sea saw it and fled. Jordan was driven back. The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs. What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest, thou Jordan, that thou wast driven back? O ye mountains, that ye skipped like rams, and ye little hills like lambs. Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob, which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters. Psalms 115. God entreated to exert his honor. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name. Give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now their God? But our God is in the heavens. He hath done whatsoever he hath pleased. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. They that make them are like unto them. So is every one that trusteth in them. O Israel, trust thou in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. Ye that fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. The Lord hath been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. The Lord shall increase you more and more, you and your children.
Ye are blessed of the Lord, which made heaven and earth. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth hath he given to the children of men. The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. Psalms 116. The psalmist professes his love to God. I love the Lord because he hath heard my voice and my supplications, because he hath inclined his ear unto me. Therefore will I call upon him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell get hold upon me. I found trouble and sorrow. Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and he helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believed, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant, and the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bonds. I offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people, in the courts of the Lord's house. Of the Lord's house in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. भजन संहिता 113, 114, 115, 116 अध्याय पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। स्तुति के योग्य नाम 113 अध्याय पहले वचन से। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है, और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। वसह का गीत 114 अध्याय पहले वचन से। जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेंढों के समान उछलने लगा, और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ
कि तू उल्टी बही। हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान का जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर। 115 अध्याय पहले वचन से। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। तो भी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति करो। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। 116 अध्याय पहले वचन से। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं धूलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के समान जानकर नित चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा, सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहाँ की स्तुति करो।
years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 17 चैप्टर 20 वर्स से 30 वर्स, 1 सैमुअल 4 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20 से 30 वचन और पहले शमूएल की पुस्तक 4 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को अपने पर्सनल व्यक्तिगत समय में पढ़ना है। जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो जो वचन परमेश्वर हमारे अंदर भेद खोल कर देगा, पवित्र आत्मा वो वचन हमारे अंदर कुछ बनाने के लिए हमारे जीवन में, और जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए वो सब कुछ बिगाड़ने में काम करेगा। सब कुछ बिगाड़ देगा वो, जो हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए वो सब कुछ बिगाड़ देगा। ऐसे वचनों के भेद परमेश्वर हमारे अंदर रखेगा। बहुत ज़रूरी है ये। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो सब कुछ बिगाड़ देने वाला ऐसा अभिषेक किया हुआ, ऐसा सामर्थी वचन तलवार की तरह हमारे अंदर चीर कर आएगा और सारे भेद खोल देगा। ऐसा वचन हमारे अंदर आना ज़रूरी है। ऐसा वचन हम प्राप्त करें तो उसके नोट्स बना लेना है और हमने उसको अपने जीवन में चलना है। और जब हम ऐसा करते हुए जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर सिर्फ परमेश्वर चाहता है वही रुका रहा है, और जो परमेश्वर का नहीं है वह ख़त्म हो चुका है। ये तरह से परमेश्वर हमें उसके उपयोग का बर्तन बना लेगा, और जब हम उसके उपयोग में आएंगे तो हमको प्रतिफलों से भर दिया जाएगा। ये होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। हमने निश्चित इस अनुग्रह का निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमको वचनों में से हमारे जीवन की परख करने के लिए मदद कर खुदा। हमारे जीवन के अंदर जो भी कांटे हैं, जो दुख है, जो परमेश्वर पीड़ाएं हैं, जिसके विषय में खुदा परमेश्वर तेरा वचन आज हमें समझाया है, जो बहुत सारे बातों के अंदर से खुदा परमेश्वर हमको बाहर लाया है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता तूने आसान करके हमें उसके पार लेकर आया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड कि ये वचन हमारे अंदर फिट एंड फिक्स हो चुके हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, हम इन वचनों के कारण बिल्ड हो चुके हैं। हमारा जीवन मजबूत हो चुका है और हमारी नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर बंधी है और वो कभी नहीं गिरेगी। मेरे खुदा, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई जादू, कोई टोना, कोई प्रकार के मंत्र, कोई श्राप, कोई भी प्रकार की युक्तियाँ, कोई भी चालाकियाँ शत्रु की ओर से हमारे ऊपर जब आए तो खुदा ये वचन आड़े जाएगा और पिता परमेश्वर हम जीत जाएंगे और शत्रु हार जाएगा। हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। ऐसा महान परमेश्वर है तू। तेरे वचन से तूने हमें ये संभव करके दिया है। आज के वचन पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर फिट एंड फिक्स करके दिए। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। वी लव यू होली स्पिरिट and I love you too, Father God. I love you very much, Abba, Father God. I love you, Jesus. I love you, Abba. I love you, Holy Spirit. हम अपने अंदर से अपने प्रेम परमेश्वर तुझे जताने के लिए अलग अलग तरीके हमें दे। हम तुझे परमेश्वर तेरे राज्य के कामों में बोकर तेरे पिता परमेश्वर तेरे कामों को सेवा में करते हुए, और पिता तू चाहता है वो आज्ञा पालन करते हुए अलग अलग प्रकार से पिता हमें तेरे प्रेम को जताने का परमेश्वर तू अनुभव दे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।